Welcome to my channel, Life and Living. Today my guest is Swami Sarvalokanandaji Maharaj from Ramakrishna Mission. He is the secretary of Ramakrishna Mission, Delhi. So I am very privileged, Swamiji. It's my blessing that I have you in my show, my channel. Thank you very much. Swamiji, the first and foremost question I have for you, that what is the most important objective of human birth? Thank you, Sunetra, for having invited me to your channel Life and Living to discuss about some issues of human life. First question you have put to me for discussion is that main objective of human life. Perhaps all of you know that in our scriptures and the sayings of the great man, spiritual leaders, it is said that three things are very rare. Durlabha. What are the three things? Not money or wealth or power or position. Three things, according to Vivek Chudamani by Shankaracharya, that is Manushyattva, Mumukshattva, Mahapurusha Sangs, the company. Dear friends, that is human birth is very rare. Number one. Number two is, you will find rarely anybody, not everybody, is interested in mumukshatva, in liberation. And third is, it is very difficult to get the company of a holy person. That is Mahapurusha Samsara. Because after a lot of birth, one gets this rare human birth. So how we should do or how we should utilize this precious, rare human birth? An objective of human life, according to our scriptures, and Sri Ramakrishna has put it in very right way, Manushya Jivaner Uddesya Hocche Ishwara Labh. The goal of human life is to realize God. In this connection, I would like to tell you, an incident happened in the life of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna was invited by his ardent devotee. His name is Adhar Chandra Sen. He was deputy magistrate. Once Adhar Chandra Sen invited Sri Ramakrishna to his house, and along with Sri Ramakrishna, Adhar Chandra Sen invited many guests. And among the invitees, there was a great personality named Bankim Chandra Chattopadhyay. So, Sri Ramakrishna was introduced to Bankim Chandra Chattopadhyay, and they started talking. Then, all of a sudden, Sri Ramakrishna asked Bankim Chandra Chattopadhyay, what is the goal of human life? Like ordinary person, Bankim Chandra replied, the goal of human life is to eat, drink and be merry. Ahara, Nidra, Bhaya, Maithuna. Then Sri Ramakrishna got annoyed and said, Bankim Chandra, you are a very wretched fellow. Person like you are telling that the goal of human life is to just enjoy, to eat, drink and be merry. No, this cannot be the goal of human life. The goal of human life is to realize God. And dear friends, because
as our Bankim Chandra said, that whole goal of human life is to eat, drink, and be merry. Then where does the difference lies between man and animal? You find these things are common between man and animal and human being. Ahara nidra bhaya maithuna. That is, if you see outwardly, you will find there is no difference between man and animal. I am telling you externally, apparently. Man also eats, animal also eats. Man also take rest, and animal also take rest. Man also satisfy his biological need, and animal also satisfy his biological need. So if you see, there is no difference outwardly between man and animal. But that cannot be. There is a difference between man and animal, and the basic difference is, the fundamental difference is, that man is endowed with a very, what is called a very good quality, and that is called Viveka Buddhi. Only the man has that discriminating faculty, Viveka Buddhi, Vichara Buddhi. That is why man is called best creation of God on this earth. That is why you must understand and you must utilize this precious, rare human birth to realize God. Realize God in the sense, yes. Swamiji, here you said that to realize God, from the initial birth a child has, how will the child get this, Vivek Buddhi, this discriminating faculty? You see, it is inborn. Everything, all faculties in human life, it is inbuilt, is inborn. With the passage of time, when a child grows, slowly, that child will develop this discriminating faculty or any human faculty. Slowly, that child will develop that faculty. So the parents need to nurture? Yes, the parents has a background or what is called great immense contribution in developing this faculty in the children. That is why the goal of human life is to realize God. And what is it? Realize God? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ. What do you mean by that? To know yourself, know your potential, know your immense possibilities, know your strength. That is why Swami Vivekananda said that the infinite power is lying within you, you can do anything and everything. So to realize God means to know your strength, know your power, know your immense possibility, know your potentiality. That is called, in simple way, that is called realize God. To know yourself. Know yourself means to know your strength, power. That is why Sri Ramakrishna or Swami Vivekananda said, he very rightly said, Vivekananda said, each soul is a potentially divine. Goal of human life is to manifest this divinity within. The religion or spirituality, to realize or to manifest divinity within, is actually called self-realization, or it is called the super-consciousness, or it is called that God realization. स्वामी जी, मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को एक संस्कार माता पिता से मिल रहा है, तो माता पिता को तो इतना वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा. नहीं, ये से एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है. यू सी, when our parents in older time, when our parents were not so educated, particularly mothers were not educated, but they used to give good samskara to the children. When we are young, our grandmother or grandfather
or our mother or father used to give lot of good samskaras. For giving good samskara, one need not to become very educated. उसके लिए बहुत विद्वानता की आवश्यकता नहीं है, विद्वता की आवश्यकता नहीं है. वो उनको बच्चों को इसे हमें संस्कारित करना है. तो दुख की बात यह है बच्चों को वैल्यूज देना भूल गए हैं. Swamiji, I think this is also very important to know from you. What is the meaning of good life? You see, generally you understand good life means which is having all amenities of life, wealth, power, position, etc. But we have to understand good life means what is called good living. There is a meaningful living and peaceful living. It is called good living. So how we can lead a good life? In this connection, I like to tell you the quotation that is later written to Maharaj of Mysore by Swami Vivekananda. Very touching letter, wonderful letter. He writes, Swamiji, dear noble friends, life is short, and the vanities of life are transitory. They alone live who live for others. Rest are more dead than alive. बहुत ही सुंदर चिट्ठी लिख रहे हैं. What is the meaning in Hindi? कह रहे हैं प्रिय महाराज, ये लाइफ भी 2 दिन के लिए है, जिंदगी 2 दिन के लिए, आज है कल नहीं भी हो सकती है. जीवन के जितने भी अहंकार हैं, द वेल्थ, पावर, पोजीशन, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ये भी 2 दिन के लिए है, आज है कल भी नहीं हो सकता है. अगर ऐसा ही है तो यथार्थ जीने का अर्थ यही है कि जो दूसरे के लिए जीता है. नहीं तो जो लोग के लिए अपने लिए जीते हैं वो तो जीते हुए भी मुर्दे का समान है. वंडरफुल. तो दूसरे के लिए हमें जीना है, खाली अपने के लिए जीना नहीं है. इसी दृष्टि से हमें अपना जीवन जीना है. इसलिए हम कभी कभी देखते हैं जियो और जीने दो. खाली अपने ही जिएंगे, दूसरे को जीने के लिए हम सहायता नहीं करेंगे तो ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग. इसलिए स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि अच्छा जीवन जीने के लिए, गुड लाइफ जीने के लिए अनसेल्फिशनेस की आवश्यकता है. निस्वार्थता जिसको हम कहते हैं, सेल्फलेस और अनसेल्फिशनेस. वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बहुत बड़ी बात है ये. निस्वार्थता यह है आध्यात्मिकता की कसौटी है. और फर्दर स्वामी विवेकानंद इज टेलिंग दैट अनसेल्फिशनेस इज गॉड. निस्वार्थता ही क्या नाम ईश्वर है. तो इसलिए केवल अपने लिए जीना नहीं है, दूसरे के लिए हमें जीना है. जब हम दूसरे के लिए जिएंगे, दूसरे के लिए कुछ करेंगे, दूसरे के लिए हम सहायता करेंगे तो भी हम भी अच्छी तरह से हम जी सकते हैं. और एक बात इसमें है, जीने का अर्थ यह होता है जब हम लाइफ लिविंग करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर जो दैवी शक्ति है, द स्टार्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज वी कैन से अदर वर्ड्स, ये दैवी शक्ति जो है, प्यार, स्नेह, निस्वार्थता, स्वानुभूति, एकात्मता, ये सब चीज जो है, ये सब चीज हमें हमारे अंदर, हमारे भीतर अभिव्यक्ति होनी चाहिए. यू हैव टू मैनिफेस्ट, otherwise you are not a human being. Your living will not be up to the standard, or your living will not be what is, I should say, not peaceful living.
If you want to have peaceful living, then you have to develop or manifest these what is called sterling human qualities. In other words, these divine qualities. स्वामी जी, एक चीज़ पूछूंगी, ये जो निस्वार्थ था और जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी है, ये जो सेवा परायणता, ये जो सेवा की भावना मन में जागेगी, ये भी तो बचपन से, अगर वो भी तो देखिए, जो कुछ भी हमें बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है, सब शिक्षा पहले घर से ही आरंभ होती है। सब शिक्षा बच्चों को पहले दी जाती है घर में। तो दुख की बात यह, मैंने कहा, फिर मैं कहूँगा कि पिता माता जो है ये सब शिक्षा बच्चों को नहीं देते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं, किसी व्यक्ति को बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छा जो व्यक्ति है उसके अंदर, उसके भीतर द डिवाइन फोर्सेस, द डिवाइन क्वालिटीज है, वो उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा है, इसमें मैनिफेस्टेशन इज मोर। और जिस हमको कहते हैं व्यक्ति अच्छा नहीं है, दुष्ट है, इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के अंदर डिवाइन फोर्स की अभिव्यक्ति बहुत कम है, और आसुरिक शक्ति, आसुरिक क्वालिटीज जो होता है, एनिमल नेचर, उसका जो होता है अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यही अंतर है। इज ओनली डिफरेंस ओनली इन मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टर्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज। अंतर ही है, किसी में ज़्यादा होती है डिवाइन क्वालिटीज, किसी में कम होता है। उसी तरह से हम विचार करते हैं मनुष्य को, कौन अच्छा है कौन बुरा है। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग है वो प्रेजेंट जनरेशन यूथ के लिए। यू हैव पुट वेरी राइट क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिनारियो। स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा है, जो संदेश है युवाओं के लिए, खास करके यह है कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। कैसे हम अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे हम आदर्श नागरिक, एनलाइटेंड सिटीजन बन सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयत्न करेगा, जिसको स्वामी जी बार बार कहते हैं मैन मेकिंग। और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। क्यों बार बार स्वामी विवेकानंद जी चरित्र निर्माण के बारे में कहते हैं? चरित्र के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। केवल व्यक्ति नहीं, देश के लिए भी, देश की उन्नति के लिए भी चरित्र की बहुत ही आवश्यकता है। चरित्र तो मनुष्य जीवन का एक आधारशिला है, द बेसिक फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं रहा तो उसके ऊपर जितने भी आप मकान क्यों नहीं बनाए, जो कुछ भी करें, वो सब 2 दिन के बाद वो नष्ट हो जाता है। दैट इज स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, युवाओं को बार बार उन्होंने ललकारा है। rather he has called youth, clarion call to the youth, rather I will say, that you become good human being, better human being. In other words, you become good enlightened citizen. And again he said that it is possible when you will develop your character. So character is very important in becoming great, or becoming also to achieving success. तो ये जो सफलता के लिए भी चरित्र की बहुत ही आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चरित्र एक ऐसा गुण है, चरित्र इज सच ए पावरफुल थिंग which cleaves through the adamantine wall of all difficulties and challenges. चरित्र के अंदर एक शक्ति होती है, जो शक्ति किसी भी समस्या या चुनौती का समाधान कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। Cleaves through the adamantine wall of all difficulties. तो चरित्र की बहुत आवश्यकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किस लिए वो आए थे? What is the mission of Swami Vivekananda? He himself is telling
My mission is man making. Man making is my mission. मनुष्य तैयार करना ही, निर्माण करना ही मेरा जीवन का व्रत है. सो स्वामी विवेकानंद चाहते थे ये हर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बने, अच्छा मनुष्य बने. दैट इज व्हाई स्वामी जी इज टेलिंग men are wanted, everything take care of itself. हमें मनुष्य चाहिए, मनुष्य चाहिए, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी यूथों को बार बार उन्होंने कहा है कि भाई तुम अपना अच्छा इंसान बनो और चरित्र का भी तुम निर्माण करो. क्योंकि फिर एक आप कहावत जानते हैं, मैं इसको दोहराना चाहूँगा. जस्ट आई वांट टू रिपीट वंडरफुल प्रोवर्ब, कहावत. इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो बात ऐसी ही आज के दिन में सब उल्टा चल रहा है. कैसा उल्टा चल रहा है कि अगर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. कैरेक्टर इज लॉस्ट, कुछ भी नहीं लॉस्ट हुआ. अगर मनी लॉस्ट हो गया तो सब कुछ लॉस्ट हो गया. उल्टा हो गया अभी. मतलब द एंड इज मटेरियल nowadays. Yes, end is material, only money, money, money. You see, you are talking about the good living. Good living कैसे संभव है? We have become economic animal, I should say, if I am permitted to say, economic animal. खाली पैसा रोजगार करने के लिए हम मनुष्य बने हैं. No, पैसा रोजगार करने के लिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है. ये तो साधारण चीज है. We have to go farther and farther. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी युवाओं पर बहुत भरोसा था उनका कि युवा देश के लिए काम करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे. युवा जो है, दैट इज व्हाई सेड ए ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद एड्रेसिंग द यूथ. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, माई फेथ इन मॉडर्न जनरेशन एंड यंग जनरेशन, आउट ऑफ देम my worker will come. They will work like a lion for regeneration of India. क्या स्वामी जी कहते हैं? युवाओं पर मेरा भरोसा है, या आधुनिक पीढ़ी पर मेरा भरोसा है, और मैं आधुनिक पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से ही देश के लिए काम करने के लोग आएंगे और सिंह के माफिक काम करेंगे युवाओं, और देश को आगे ले जाएंगे. सो युवाओं को पहले होना है, मनुष्य बनना है, बस, और कुछ नहीं. आजकल के दिन में बहुत सारी कमियां हैं, अभाव है, बट जो सबसे बड़ा कमी है दैट इज शुभ बुद्धि संपन्न. बांग्ला में दो चार बात बोल दें. शुभ बुद्धि संपन्न मानुषेर अभाव. द लैक ऑफ, डेर्थ ऑफ और स्कैरसिटी ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग. Good human being. If you are not a good human being, then you cannot become the ideal citizen or enlightened citizen, which is urgent need of our country, not only of our country, all over the world. तो इसलिए स्वामी कहते हैं अच्छा मनुष्य बनो. लेकिन आप बार बार जो बात एक दोहराते हैं कि पिता माता की भूमिका, पिता माता की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है ये सब में. बच्चों को क्या करते हैं? जन्मने के बाद उसको यही कहा जाता है, यू बिकम इंजीनियर, यू बिकम डॉक्टर, यू बिकम गुड सिंगर, यू बिकम सो एंड सो. लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि तुमको अच्छा मनुष्य बनना पड़ेगा. ए पर्सन कैन बिकम गुड एफिशिएंट सिंगर और डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉट एवर इट मे बी, but at the same time he or she may not be a good human being. अगर anybody is good human being, better human being, वो तो अच्छा, और भी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, और भी अच्छा इंजीनियर बन सकता है, और भी अच्छा राजनेता बन सकता है. तो पहले हमें जो आवश्यकता है वह है गुड ह्यूमन बीइंग. स्वामी जी, इट इज़ वंडरफुल डिस्कशन. एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेरीज आज क्लियर हो रहे हैं. तो ये ग्रोन अप जो एडल्ट्स हैं आज के युग में, जो इनके लिए वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? देखिए,
हर यूथ को तो पैसा कमाना पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा, नेसेसरी है। नेसेसरी है तो जीवन निर्वाह करने के लिए, ये सब तो है। लेकिन ये सब के बावजूद जीवन के और एक भी पहलू हैं, अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अनदर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, whether it is young or old, whatever it may be, particularly the young people, they should understand there is another dimension of human life or human being. What is that dimension? That dimension is the spiritual dimension. There are two dimensions. One is material dimension, everybody knows. And another dimension is the spiritual dimension. Spiritual dimension क्या है? स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक पहलू जो है वह है मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बनाता है, निर्माण करता है, ही और कुछ नहीं है। इफ साइमल्टेनियसली बोथ, दोनों की आवश्यकता है। एक तो जागतिक सांसारिक जीवन चलने के लिए भी आवश्यकता है, और एक है ये जीवन को और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता तो यही है अपने आप को बनाना, अपने आप को, जो बार बार हम दोहरा रहे हैं, अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाना। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर बीइंग, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक रूपांतरण। व्हाट डज इट मीन? उसका अर्थ ऐसा होता है कि हमारे अंदर का परिवर्तन होना चाहिए। और अब और भी हम इसको अगर साफ साफ कहें तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर 6 दुश्मन बैठे हुए हैं, एनिमीज, बैरी, 6 रिपुस, 6 रिपु कहते हैं हमारे शास्त्र की भाषा में। 6 शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। उसको हटाना है। और उसको हम कैसे हटा सकते हैं? ये आध्यात्मिकता के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो स्वामी जी, जो ग्रोन अप, जो एडल्ट हैं, वो तो अपने नेचुरली माता पिता से उनको जो मिला है, सहबत जो शिक्षा मिला है, वो तो उनको मिल गया है। उसके बाद आगे लाइफ में चल के लिए नहीं, देखिए, ये जो है ना, ये जो है लर्निंग, नोइंग, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये मत सोचिए कि 4 साल के बाद खत्म हो जाता है, कि 25 साल के बाद नहीं। जब तक आप जिएंगे तब तक आप सीखेंगे। ये श्री रामकृष्ण की भाषा है, वो बंगला में कहते हैं जाबोद बाँची ताबोद सीखी। जितने दिन हम बचेंगे, जितने दिन रहेंगे, उतने दिन हम सीखेंगे। देयर इज नो एंड टू लर्निंग। इसलिए मत सोचिए कि घर में पिताजी हो गया 4 महीने में, 4 साल में सब कुछ सीख लिया, नहीं। इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू हमें जाना चाहिए। तो हमारे जो युवाओं हैं, युवाओं से कहना है कि लिए भाई तुम देश के लिए सोचो, देश को आगे बढ़ाओ, अपने लिए मत सोचो केवल। अपने तो सोचोगे जरूर, अब तो अपने लिए तो सोचना है, करियर बनाना है। लेकिन और भी एक बात है जिसको हम कहते हैं वैल्यूज। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि देयर इज इमेंडस इरोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मानवीय जो मूल्य है, वो मानवीय मूल्य की कमी हम देख रहे हैं। ट्रिमेंडस, ऑल थ्रू व्हाट यू विल सी, rampant corruption, दुर्नीति, this, that, so many untoward incidents happening, not only in India but all over the world. What is the reason? The reason है कि हमारे अंदर जो मानवीय मूल्यों की विकास होना चाहिए था, वो मानवीय मूल्यों का विकास नहीं। What are the human values? Truthfulness, unselfishness, ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता, ये सब डिवाइन क्वालिटीज है, या वो अब दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, एक ही बात तो है सब। तो इसलिए ह्यूमन वैल्यूज की बहुत आवश्यकता है। और फिर इसको हम कैसे हमारे अंदर, हमारे भीतर, चाहे टीचर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पिता माता हो, वो वैल्यूज को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, मानवीय मूल्यों को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। हम तो भूल गए हैं क्या ईमानदारी है, क्या सच्चाई है,
ये सब भूल गए हैं। हम तो जानते हैं कैसे चोरी करना है, कैसे घपलाबाजी करना है, ये सब हम जानने लग गए हैं। टोटली वी हैव फॉरगॉटन व्हाट इज ट्रूथफुलनेस। मैनिपुलेशन कैसे करना अरे है, सब हो गया, इंसान को क्या बताना है, सब क्या भूल बोलना गए है। हैं। हाँ। अरे मानवीय मूल्य तो जो मैंने भी पहले भी कह रहा था, द ह्यूमन वैल्यूज आर वेरी फाउंडेशन। मनुष्य का जीवन का एक आधारशिला है, फाउंडेशन है ये वैल्यूज। हमारे इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अनराइचुअसनेस, धर्म के बिना मनुष्य तो पशु के समान है। इफ यू टेक अवे द ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, then that person, that human being is nothing but animal. इसलिए मानवीय मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। एंड इट इज द ड्यूटी, मोरल ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी टू इंस्टिल, टू imbibe with this human values. So today I am feeling very blessed that Swami Ji, Swami Sarvalokananda Ji Maharaj came from Ramakrishna Mission, Delhi. Swami Ji, pranam.